This cover करते हैं conference will like now be recorded. create user and create group and custom add domain and add domain के साथ साथ just like SSRP enable and SSRP के साथ we are just using like multi-factor authentication. So how to create user, and I'm login with portal. And sign on. And how to add custom domain. So guys, already हम कल कर चुके थे, so I'm just again repeat. So I'm just go to the Azure Active Directory, and inside the Azure Active Directory you can, the one option is coming custom domain name, and already हमारा एक domain add हो चुका है यहाँ पे. So अगर आपको multiple domains add करने हैं, so you can tap the add custom domain name and give the domain name is ICCP infotech.tk and add domains. And after click add domain, you give me the this point, so you can just go to जहां से भी आपने domain buy करा है, like either GoDaddy और कहीं भी, वहां पे आप जाके DNS के अंदर जाके you can create the TXT records. और TXT records बनाने के बाद you can just put the value, target के अंदर आपको ये वाली value add करनी है, and TTL value by default 36 ही होती है, और verify आपको कर देना है, और आपका जो domain है वो इस तरीके से यहाँ पर add हो जाएगा. Got it the point, Brinder? Secondly, you can add the multiple domains, because this is the one kinds of the compute lab services. So how to create the user, like अब आपका domain add हो चुका है, so I'm not using the another domain, I'm using this one domain, that is the ICCP US. So I'm just click on the users, or inside the users I'm just click a new user, and guys, new user, I'm just give the name of like a username is like Raj. I'm creating the one user who is called, the name is Raj, and I'm select the ICCPUS.tk. And Raj ICCPUS.tk select करने के बाद I'm just give the name of RAJ Raj, and just auto generate, or let me choice is yours, so I'm just using the auto generate password right now, and then create. So after that, I'm just login with this particular user. I'm just again login with portal. So I'm open the portal in the another windows, in incognito window, and the tab the username is Raj @ICCPUS.tk, and next, and this is my password. This is auto generate passwords, and again he asked me the change the passwords. I'm just put and give the name of, and then sign in, and just click on skip for the now 14 days. या help us या Microsoft enable security. So आप करना चाहते हो भी कर दीजिए. So next, and guys, I'm logged in with the user. So at this time मैं अपने इस particular user से login हो चुका हूँ guys. So this is a for key account structure. Key account structure, why this option is coming for verification. Like अगर आप first time user बनाते हो, तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी वो फीचर जो है ऑलरेडी एड ऑन हो रखा है, तो की अकाउंट फीचर्स का मतलब है कि फर्दर यू कैन प्रोवाइड योर ब्राउजिंग कॉल ऑन योर फोन फॉर टेक्स्ट एंड कोड योर फोन. लाइक आप कोई भी पासवर्ड चेंज करना चाहते हो या कोई अदर ऑथेंटिकेशन अपने यूजर्स को देना चाहते हो, दे सकते हो. आई एम जस्ट राइट नाउ आई एम स्किप दिस सेटअप. सर मेरा एक क्वेश्चन था. ये जो यूजर है 14 डेज वाला जो दिखाई देता है,
14 डेज के बाद वो क्या डिसेबल हो जाएगा यूजर, या उसका लॉगिन नहीं होगा, या ये वो रिमूव हो एक्चुअली क्या है, जाएगा? 14 डेज का मतलब है कि ये सारी अपडेट आप भर दोगे ना, तो 14 डेज के बाद आपको ये अपडेट देनी पड़ेगी, ओके। या तो आप और पहले ही कर ये दो। जो डेज होते हैं ये फिक्स होते हैं सर इसमें? जैसे 14 डेज को हम इसको बढ़ाना 14 चाहें डेज तो? का मतलब है विदाउट वेरिफिकेशन 14 डेज तक ही वैलिड है। ओके। ट्रायल पीरियड है, दिस इज योर ट्रायल पीरियड। हाँ। लाइक कोई गेस्ट यूजर आया तो आप गेस्ट यूजर्स क्रिएट करके दे रहे हो। हाँ गॉट हाँ। इट माय पॉइंट? उसके बाद सर लॉगिन जब करेगा तो क्या वो ऑथेंटिकेशन नहीं, कैसे? ये ऑप्शन नहीं आएंगे, ये सब ऑप्शन नहीं आएंगे, हाँ। ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। वो सिर्फ वही है, आप अपना ईमेल आईडी अपडेट करिए, फोन नंबर अपडेट करिए, वो सारी चीजें मांगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो 14 डेज तक विदाउट अपडेट के आपका चलेगा। ओके। गॉट इट उसके माय बाद पॉइंट? सर जो है अपडेट करना पड़ेगा, हम्म। ऐसा कुछ? ओके। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है। चलिए सो अब चलते हम अपना लाइक हाउ टू अटैच एमएफए डिवाइस और रीसेट द पासवर्ड। सो आई एम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द पासवर्ड एंड पासवर्ड टैब में हम सिलेक्ट द ऑल, और ऑल करके ऑलरेडी हमने सेव करा हुआ है कल का, सो यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है। ये अगर हम पर्टिकुलर यूजर ग्रुप को देना चाहते हैं, सो वी हैव सिलेक्ट द ग्रुप। आईसीसी पे एक ग्रुप है, हम इस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर जो भी हमारे यूजर्स हैं, सिलेक्ट ग्रुप यूजर, सो देयर इज अ नो यूजर। तो अगर हम पर्टिकुलर यूजर को ग्रुप को देना चाहते हैं, सो ग्रुप को भी यहाँ पे हम ऐड ऑन कर सकते हैं, बट फिलहाल हमने ऑलरेडी ऑल करा हुआ है। सेकंड, द एमएफए डिवाइस, आई एम क्रिएटिंग द वन यूजर, so I'm enable, click on user and then click per user MFA, and this is a Raj users and I'm enable and click and then close. So guys, ये यहाँ पे मैंने यूजर भी पे MFA डिवाइस के फंक्शंस भी इनेबल कर दिए हैं, एंड पासवर्ड रीसेट्स के ऑप्शन भी मैंने इनेबल कर दिए हैं। सो आई एम डाउनलोड द वन ऐप, मैं एक ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ, एंड दिस ऐप इज अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन माय मोबाइल। तो आप लोग भी इस ऑथेंटिकेटर वाली ऐप को डाउनलोड करिए अपने पास, करना चाहते हो तो। सो मैं यहाँ पर अपनी ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। एंड जैसे मेरी ऐप डाउनलोड हो जाएगी, सो अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट लॉग इन अगेन, कि मैंने ये ऑप्शन एनेबल तो कर दिए हैं एडमिन पैनल से। आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर पैनल एंड देन जस्ट लॉग आउट, एंड साइन आउट करने के बाद आई एम जस्ट अगेन साइन आउट विद दिस यूजर, एंड गाइस मैं दोबारा से साइन आउट होता हूँ, तो Raj, and give the password, and I'm not adding this, I'm just click on next, and next करने के बाद you can see the my sign ins option is coming. Your account structure, your organization requires you to set up the following method of providing. So this is the authenticator process, so I'm just click on next, then click next, and this is a barcode. I'm just scan this barcode through my app installed by the Google Play. Is it Google Authenticator? एंड आई स्कैन द बारकोड। सो जैसे मैं यहाँ से बारकोड स्कैन करूंगा, इट गिव मी द वन कोड, सो एंड देन नेक्स्ट। तो गाइस मैंने ये स्कैन कर लिया है, सो स्कैन करने के बाद इट्स कनेक्टेड, और जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो मेरे पास ना एक मैसेज आएगा मेरी उस पर ऐप पर, जो आपको अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये मैंने नोटिफिकेशन अप्रूव कर दिया है, जो मेरे ऐप पर रिसीव हुआ मेरे को। देन नेक्स्ट, अब ये मेरे से आपसे पूछ रहा है कि सेकंड वे की फर्स्ट वे तो है आपका गूगल अथॉन्टिकेटर, सेकंड थ्रू द फोन। So I'm just click, I'm also at the phone number, like I'm just click on I for India and click, I'm set the phone number कर दिया। This so सिंपल conference सा will है now be recorded. कि सिर्फ मैंने अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑफ करी थी, so वहां पे आपको सिर्फ फोन नंबर देना है, देन नेक्स्ट करना है। You can receive the OTP in a phone number, then you can enter the phone number and then
वेरीफाई और गाइस क्लिक ऑन यस। और अब देखिए मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब लॉगिन होने के बाद अब मेरे को चेक करना है, सो आई एम जस्ट अगेन साइन आउट विद दिस पर्टिकुलर यूजर and click give the password and you can see कि give me the error the approve the sign in request। तो आपके जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है वहां पे एक आपके पास रिक्वेस्ट आएगी अप्रूव की मैसेज, तो या तो आप उसको अप्रूव कर दीजिए। तो जैसे मैंने अप्रूव करा और ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया लॉगिन। सो जस्ट सिंपल सा है कि अप्रूव करने का आपके पास ऑप्शन आएगा, कोई कोड नहीं डालना। जैसे कहते हैं ना कि एक नोटिफिकेशन मैसेज आ रहा है, पहला वे तो ये है कि आप ऐप के थ्रू अप्रूव कर दो, या सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, आई एम जस्ट अगेन साइन आउट एंड लॉग इन विद सिस्टम एंड गाइस यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी आ रहा है, मोर इंफॉर्मेशन आई कैन नॉट यूज माई माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन, तो वाया फोन नंबर। So it sent the text message in my mobile number. Is it called a OTP 240509 and verify। और यू कैन सी कि दोनों तरीके से मैंने आपको वेरीफाई कर दिया थ्रू द ऐप। तो ऐप के लिए आपके पास क्या है कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके ऐप पे सिर्फ मैसेज आएगा अप्रूव्ड और आपका यूजर लॉगिन हो जाएगा। या सेकंड ऑप्शन, अगर आप मोबाइल के थ्रू करना चाहते हैं तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि एक वन टाइम पासवर्ड आएगा ओटीपी जिसको हम बोलते हैं, एंड आप उसको अप्रूव करेंगे देन आपका यूजर लॉगिन होगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। तो अब वो 14 डेज वाला ट्रायल ऑप्शन नहीं आ रहा है। प्रवीण, वीरेंद्र क्लियर? वीरेंद्र, Yes, yes, Praveen, sir. is it clear? Yes, sir. Then Yes. next one more option, the reset the password. So I'm already self service reset password enable करा हुआ है, so I'm just click। तो ये सब करने के बाद हमारे इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। So I'm just click on Raj and forget my password। So guys, it's auto detect my email ID and we have just sent this code and then next। एंड नेक्स्ट करने के बाद ये अब मेरे से पूछेगा टेक्स्ट माय मोबाइल फोन नंबर, तो आई पुट द इंटर योर फोन नंबर। सो मैं फोन नंबर इंटर कर रहा हूँ यहाँ पर, This कोड conference will now be recorded. 065,000 065,000। सो मेरे मोबाइल पे ये मेरा ओटीपी आया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड गाइस द वन ऑप्शन इज कमिंग द पासवर्ड। so I put the password is and just click on finish। so I'm just put the again password what happened, unfortunately your password contain a word। हे यार ये बड़ा आफत है। यार फिर से पासवर्ड में क्रिएट कर लेता हूँ गाइस, बना लेता हूँ। so I'm just click on the just click hello at ASD123। so I'm creating this password hello ASD at 123। unfortunately your password contain a word faces or pattern that makes it easily
Please retry the again. Say strong password is required. Strong password are the 8 to 256 character. भाई यार अब इससे एक ज्यादा character क्या डालूं? तो गाइस ये पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया इसने, hello at 123 और hello का H कैपिटल है खाली और 123 और 23 है एंड क्लिक। और गाइस अब मेरे को अगर लॉगिन करना है, so I'm just click and then click on password and sign in. Again the approve the notifications through app. So I'm just open Google Authenticator app and then approved और मैंने अप्रूव कर दिया गाइस, तो मेरा यूजर यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। क्लियर गाइस? बहुत ऑफ कि ये दोनों ऑप्शन हुए। अब गाइस एक और चीज है यहाँ पर, यू कैन सी कि हो सकता है कि कुछ यूजर्स आपके ऑन प्रीमाइस में भी हो। गॉट इट माय पॉइंट? दिस यूजर क्रिएटेड इन Azure एक्टिव डायरेक्टरी एंड मैं कहता हूं कि मेरा एक ऑन प्रीमाइस है, सो ऑन प्रीमाइस की मैं बात करता हूं लाइक दिस इज माय सिस्टम्स, इज इट अवेलेबल इन I'm just open my hypervisor and I'm see there the one machine is available. Oh 2012 है। तो गाइज अगर आपको अपने खुद के सर्वर्स माइग्रेट कराने हैं या सिस्टम्स वो माइग्रेट कराने हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अब क्या चीज कराना चाह रहा हूँ कि लाइक मैं कहता हूँ कि दिस इज योर क्लाउड ADDS सर्विस, दिस इज योर क्लाउड ADDS service and your domain name is like ICCP-US.tk. अब आपकी ये दिस इज योर ऑन प्रीमाइस, this is your cloud and this is your on premise. और on premise पे क्या है, you are creating this is your active directory domain service, this is your physical server of ADDS and inside the ADDS there are the 500 users is available. अब आप चाहते हो कि इन 500 यूजर्स में से एक यूजर मैं कहता हूं लाइक का प्रवीण है और एक यूजर वीरेंद्र है। सो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा इट्स ऑन प्रीमाइस यूजर और क्लाउड AD यूजर गाइस, प्रवीण और वीरेंद्र। क्लाउड यूजर तो राज है ना, बट मैं चाहता हूं कि ऑन प्रीमाइस यूजर से मैं अपना वो मैनेज करूं क्लाउड का अकाउंट। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट कनेक्ट माइग्रेट दिस यूजर इन Azure एक्टिव डायरेक्टरी। मैं यूजर को कहां पर माइग्रेट करूंगा, Azure एक्टिव डायरेक्टरी, और उसके लिए वी आर यूजिंग द AD connect. So AD connect I am using and AD connect it's provide a hybrid network. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइब्रिड नेटवर्क। तो गाइज ऑन प्रीमाइस का मशीन है कि ये वाली जो मशीन है ये मैं अजूरे पे ही क्रिएट कर रहा हूँ, सो आप इसको एज ऑन प्रीमाइस कर लेना। अगर आप ऑन प्रीमाइस है तो आपकी मशीन को सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपके सर्वर को। गॉट इट द पॉइंट गाइज, कॉन्सेप्ट क्लियर? और मैं इस वाले अकाउंट से, परवीन वाले अकाउंट से लॉगिन होके सारा काम करना चाहता हूं जो मैंने अभी करा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 500 यूजर दोबारा से यहां पर बनाऊं। तो जब आप ADDS बनाएंगे तो आपका डोमेन जिस नाम से क्लाउड पर है सेम उसी नाम का ही डोमेन आपका होना चाहिए, या फिर जिस नाम से आपकी कंपनी ने डोमेन बना रखा है सेम उसी नाम का डोमेन भी आपके क्लाउड पे भी। तो हमारे क्लाउड पे जो ADDS है वो ICCP-US.tk, so I create the one on-premise server with the name of ICCP-US.tk. बट मेरे को वर्चुअलाइजेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मैं ऑन प्रीमाइस के अंदर अपनी मशीन इंस्टॉल करके बनाऊंगा so उसमें टाइम लगेगा। so I'm just better कि I'm just deploy in cloud, so I'm just login with portals and then go to home or I'm just click virtual machines
and create virtual machines and give the name of server pay as you go and using the ICCP ADF using like my SERVER server on P. आप स्किल सेट बना रहे हैं मशरूम से स्किल सेट Oh, wait. Where is virtual machines and create virtual machines. Like on hyphen P hyphen SERVER server. Suppose karo this is my on-premise server hai, and it's US, East US, and just select the operating system. At this time, I'm deployed in like 16 server. So I'm select Windows Server 2016, and I've just give the RAM is like a 1 CPU and 3.5 GB of RAM, and the username is called ICCP, and the password is and allow these protocols. Next, then next, and it's get the automatic level network and review and create. And if you connect with this server, on-premise servers को अगर आप अपने Azure ADDS के साथ connect करना चाहते हो, so you require one tool, and this tool is called the Azure AD Connect. So I'm just download the Azure AD Connect tool. So create. And I'm download the AD Connect tool. So I'm just go to the Azure Active Directory, or inside the Azure Active Directory, you can see the option comes is Azure AD Connect, and download this software. So I'm just click manage Azure AD Connect synchronization. So not now. So where is option to download? यहाँ पे option ही नहीं आ रहा. Good, अच्छी बात है. Anyways, guys, so I'm just going in Google and download AZURE Azure AD Connect. Download Microsoft Active Directory AD Connects, and just click on download. और guys, ये मेरा Azure AD Connect का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर. Is it approximately 153 MB? And I'm login with the virtual machines. So जो virtual machines जो VM मैंने बनाई है, my VM is ready. So deployment हो रहा है. So I'm just click on home and then click on virtual machines, and then on-premise server, click, and then connect, download on remote desktop, and then click on-premise, then connect, give the username. Is it the username is ICCP?
remote server access server is not enabled, the remote computer is turned off. Why? So this is my error ki like RDP is not connect. तो क्या guys मैंने RDP protocol allow नहीं कराया था या so is it AD sorry username is ICCP and the password is ASD at 8 and then yes, and I'm just click on show in folder and I'm copied this Azure AD Connect software and paste in virtual machine. So Azure AD Connect जो सॉफ्टवेयर है गाइस वो आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे करना है ऑन प्रीमाइस पे है इंस्टॉल AD Connect. तो जब आपका डोमेन ADDS सर्वर बन जाएगा देन उसके बाद यू कैन इंस्टॉल द AD Connect सॉफ्टवेयर. आई एम जस्ट पेस्ट, मैं इसको पेस्ट करके रख लेता हूँ. and paste. So this software is copied in my virtual machine. Clear guys? And अब मैं क्या करता हूँ, I'm just deploy the server. मैं इसको domain controller बना रहा हूँ guys, ADDS server. So I'm just click on server manager and install the Active Directory domain service. Is it ADDS service इसको हम बोलते हैं. So guys, I'm just click on server manager, then next, and select the Active Directory domain service. I'm deploy the on-premise server, but in there's a note my server not installed, so I'm creating then cloud पे मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ. पहले भी हम कर चुके हैं वाले लैब स्टोरेज के टाइम पे यूजर अकाउंट के टाइम पे, अगर आप लोगों को पता हो. एंड इंस्टॉल. तो गाइस जब तक ये इंस्टॉल होता है हम इंस्टॉल द Azure AD Connect. तो ये भी मेरा कॉपी हो रहा है, जस्ट वेट. क्लियर है इतना एवरीवन? अभी तक का सिनेरियो क्लियर है गाइस? क्लियर है सर, क्लियर है. चलिए सो डोमेन बनाते हैं. सो वेट करते हैं.
So then promote this server to a domain controller. And add a new forest, and I'm create the same name, iccp us.tk. I'm get the iccp us.tk. Then next, and give the password. Then next, and then next install. And install. So just wait guys, install हो रहा है ये हमारा, and when it's installed, the automatically machine is restart. So just wait, and when it's ready, so just we start the another part. सर वो अपना डॉक्यूमेंट नहीं भेजा अभी तक सर हमें। हाँ यार मैं भूल गया था आज, डेफिनेटली मैं मतलब आपको पिन करके याद दिलाएं। This conference will now be recorded. and I'm just click, and again I'm just access the on-premise machines, then connect, and give the password is and this is my on-premise domain controller is ready. So login हो रहा है guys ये भी,
क्योंकि डोमेन बन गया इसलिए थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम ले रहा है। व्हाट हैपन यार, हम पॉज द रिकॉर्डिंग, चीजें This बताता हूँ conference will now be recorded. कि गाइस यहाँ पर जब आप AD कनेक्ट इंस्टॉल करोगे और कॉन्फ़िगर, तो ये आपसे 2 यूजर आईडी पूछेगा, यानी कि एक पूछेगा ग्लोबल एडमिन इन Azure AD, ग्लोबल एडमिन इन Azure AD। तो आपने एक यूजर बनाना है ग्लोबल एडमिन जो Azure एक्टिव डायरेक्टरी का ग्लोबल एडमिन होगा। तो हमने क्या करा हुआ है, वी हैव क्रिएटिंग द वन यूजर। अगर आप लोगों को पता हो कि हमने Azure डायरेक्टरी के अंदर एक यूजर बनाया हुआ विद द नेम ऑफ राज। तो मैं क्या करता हूं, राज को ही क्या बना देता हूं, ग्लोबल एडमिन बना दूं तो बेटर रहेगा, यस और नो। आई एम जस्ट क्लिक ऑन राज and assign a role, add assign role and मैं इसको यहाँ पे रोल असाइन कर देता हूँ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर्स के। तो कैन मैनेज ऑल एक्सेप्ट ऑफ Azure एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज एंड ऐड। गॉट इट द पॉइंट गाइस। तो राज को मैंने किस चीज के राइट्स दे दिए हैं, ग्लोबल एडमिन के राइट्स दे दिए हैं। एंड सेकेंडली कि ये हमारा हो चुका है रेडी, और 1 मिनट में देखना चाहता हूँ इस पे वो हमारी कॉपी हुई है, तो वो कॉपी नहीं हुई है। सो आई एम जस्ट अगेन क्लिक और मैं यहीं पर ही सर्च करके डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि कॉपी होने में टाइम लग रहा है। 150 MB का सॉफ्टवेयर, तो यू डोंट यूज रिकमेंडेड। टाइप इन गूगल and is that you connect, search the Azure AD Connect, download and click and download। क्या कितनी स्क्रिप्ट आती है इंटरनेट एक्सप्लोरर में। सो गाइस कहाँ पे डाउनलोड हुआ है यार ये, सर कंट्रोल जे कर लीजिए ना, मेरी जाए ना आपको। हुआ ही नहीं है क्या, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, बेवजह टाइम ही लग रहा है अपना। या तो क्रोम वगैरह हो ना उस पे तो होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में तो प्रॉब्लम होती है। 5 मिनट का टॉपिक नहीं है, इतना लेंथी हो गया।
So just wait, कॉपी हो जाता है फिर करते हैं यार, थोड़ा सा और वेट करते हैं This conference will now be recorded. guys. जब तक हमारा कॉपी हो रहा है, I'm creating the some users of this particular machine. So I'm just open the server manager, then go to tools and then click on Active Directory user and computers, and ICCP us.tk same ही domain है मेरा, and I'm create a user, and I'm creating the 2 or 3 or 4 users. So like जैसा मैं बताया था कि like 500 users हमारे ऑन प्रेमाइस में हो सकते हैं. So I'm just click like Praveen, Praveen, then next, and I'm not creating this user in Azure AD. I'm creating this user in a on-premise server. Creating the one more user. Create one more user with the name of user 1 or 2 or 3 or 4, whatever. And these all users password is a ASD at 1234 guys. And these all users, so you can see if I'm connect the with Azure AD, so this users automatically migrate in a Azure ADDS, or then you are login with this machine in a Azure portal. Got it the concept guys? क्या हमारा process है? हम इन यूजर से Azure portal पे login होना चाहते हैं और it's not a part of Azure AD. ये मेरे on premise users हैं. So I'm creating the some user और मेरा जो admin user है यहाँ पे, this is called ICCP, जो global administrator user है, and I'm just wait for this AD Connect tools. After install this AD Connect tools, I'm configure this AD Connect tool, and then process start. So just stop. This conference will now be recorded. So guys, after copy the Azure ADDC, I'm just install this software in a on-premise server. तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो सर्वर 2012 पे, तो ये आपसे पूछेगा गाइस द इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड TLS टू, बट इट्स नॉट इनेबल ऑन दिस सर्वर, प्लीज ट्राई फॉर दिस डॉक्यूमेंट्स. ओह यार, अब ये क्या एरर दे रहा है TLS का, दिस इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड TLS 1.2. सर वो आए सर्वर की सर्विसेज है, TLS हाँ उसी में होता है ना सर ये. .NET फ्रेमवर्क होता है, वेट. So how to install TLS? Wait.